Now we'll start with our next panel, fourth panel, that is Born for Business, Experiences of PWD Entrepreneurs Going Global. Current era is of startups and entrepreneurs. In recognition to this, government has also announced Startup India initiative in 2015-16. People in general are moving beyond the regular course of getting a decent job in either a government or private sector. They are up for risk and rewards. They are up for walking unguided trails or explore on their own. And they look forward to contribute their share to sustainable economic growth and employment to others. And people with disability are no different. And maybe better at a few prospects. We'll get to know such stories on regular basis. So as soon as you start online searching nowadays and you type PWD entrepreneurs, it will blow up your mind. You'll get to see many real life examples. Let it be accessible travel company run by a PWD champion. Let it be accessible rental transport considering the commuting requirements of Divyangjan, supporting parents of PWDs or the general human requirements. In this panel, we'll witness all such stories of many such entrepreneurs, their experiences of not being just self-sufficient, but being a job creator, and their tips for budding entrepreneurs. So with this, I request our moderator of the session, Atul Bhatnagar sir, our National Advisory Board member, to please join us on the dais. Atul sir is the former COO of NSDC. He left in November 2015 and found his inner calling in becoming an advisor to startups and social impact organizations in the field of skill development, education, and renewable energy. He is currently associated with Pan IIT Alumni Foundation, Parfi, San Moksha, Sarthak, IIMC Innovation Park. Welcome, sir. Next, I'd request Rahul Gupta sir to please join us on the dais. He is also our advisory board member and accomplished banker with over 16.5 years of rich experience across customer segments in India and the UK. I'd request Dr. Neeru Kumar to please join us. Dr. Neeru Kumar offers her expertise in diversity, strategy, policies, talent management, and many other areas. We are glad to have you, ma'am, here. Neeru Kumar, ma'am. Ms. Abha Khetarpal is joining us virtually. She is a national award winner, felicitated by the President of India and one of the 100 women achievers in India. Dr. Jatinder Singh, Assistant Secretary General, PhD Chamber of Commerce and Industry. Ms. Richa Sahani, Head of PR, Atypical Advantage. And Dr. Bhushan Punani, our Advisory Board member and General Secretary, Blind People's Association. Dr. Punani is also joining us virtually. With this, I request Atul sir to please take it ahead. Good afternoon to you all. On behalf of Sarthak, I welcome all my panelists here. My name is Atul Bhatnagar, and आज का जो सेशन है वो है उद्यमिता के ऊपर. और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत ज़्यादा ये शब्द यूज़ हो रहा है. और मैं एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहता था कि भाई उद्यमिता और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है. बिजनेसमैन का आपने नाम बहुत सुना होगा, बिजनेस करते हैं, बहुत लोग करते हैं बिजनेस. लेकिन ये एंटरप्रेन्योर जो शब्द है ये अभी कुछ हाल ही में आया है, मतलब कानों में पहली बार सुनाई दिया है तो बहुत दिनों से, सालों से है, मतलब ऐसा नहीं है. तो उद्यमिता में क्या चीज़ ऐसी है जो बिज़नेस से डिफरेंट है. बिज़नेस तो वो हुआ कि जहाँ पे मतलब पहले से एक कोई आइडिया आया हुआ है, सालों से उस पर काम चल रहा है. समझ लीजिए जैसे साड़ियों की बात है, तो कोई साड़ी वहाँ से कोयम्बतूर की साड़ी बनारस में बिक रही है, बनारस की साड़ी कोयम्बतूर में बिक रही है, उड़िया साड़ी राजस्थान में आ रही है. तो कोई साड़ियों का जैसे वो बिज़नेस करते हैं. तो ये आज की बात नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है. कई लोगों के तो मतलब पूरी फैमिली इसका बिज़नेस हो जाता है. वो उद्यमिता वो है कि जो चीज़ पहले कभी हुई नहीं थी उसका कोई एक आइडिया लेके किसी ने एक बिज़नेस शुरू किया. तो जैसे कि सपोज़ अगर आप चाहें कि भाई कोयम्बतूर की साड़ी अगर हमें बनारस में बनानी है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आप मतलब वहीं पे बैठ के आपके सामने आपकी साड़ी बन रही है किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू. तो वो चीज़ कभी पहले नहीं हुई, तो पहली बार हो गई. तो ये चीज़ एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है. उससे फिर वो जैसे कि कभी पहले वो कोई रास्ते पे कोई था नहीं,
आज कोई जंगल में एक नया रास्ता निकाल रहा है, वही उद्यमी है, वही एंटरप्रेन्योर है। तो उसी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या आप कौन सी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, और वो समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि ताकि वो और लोगों के भी काम आए, उससे आपका मुनाफा भी बने और आपका बिजनेस और बढ़े। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी वो उद्यमिता बढ़ रही है, उससे आप लोगों को और जॉब्स दे सकते हैं। तो आप जॉब क्रिएटर हो गए, मतलब आप जॉब देने वाले हो गए, ना कि जॉब ढूंढने वाले। जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं कि भाई हमको कहीं नौकरी मिल जाए, और जॉब क्रिएटर्स जो खुद ही जॉब बना रहे हैं और लोगों को देने के लिए। तो हमारा यही आज का विषय रहेगा। और जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं पैनल में और जो ऑनलाइन हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में एक तरह का ऐसा उद्यमी काम किया है जिससे औरों को जॉब मिल सके, या कुछ ऐसा कंसल्टिंग की है जिससे वो बढ़ सके। अब जैसे ये उद्यमिता का यही मतलब नहीं हुआ कि भाई हर एक जगह आपने कुछ पैसे लिए, लगाए और कोई इन्वेस्टर मिला और उससे आगे काम किया। एक तरह की समर्थन प्रणाली पूरी बनानी पड़ती है कि जिसमें लोग मेंटर करने के लिए भी हैं, कुछ इन्वेस्टर के लोग भी हैं, कुछ मार्केट लिंकेज के लिए हैं, आपकी चीज़ कैसे बिकेगी। आप ये भी देखिए, अमेज़ॉन वाले लोग यहाँ पे थे, तो अमेज़ॉन वालों ने कितनी, अब करोड़ों उनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रहे हैं। तो कैसे कैसे बढ़ता है, यही उद्यमिता हमारे के लिए आज की जैसे फोकस रहेगा। तो मैं अपने जो फेलो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा और उनका इंट्रोडक्शन उसी समय करूंगा। और आप लोगों का मैं समर्थन चाहता हूं कि आप लोग सुने, और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए उनको आप चाहे वो फेसबुक और यूट्यूब में पोस्ट करें, वो हमारे तक पहुंच जाएगा, या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर वो लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे पहले स्पीकर हैं राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता मेरे साथ में यहाँ बैठे हैं, और ये एक बड़े अकम्पलिश्ड बैंकर हैं। 16 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस है, और ये डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स में काम कर चुके हैं, इंडिया ही नहीं, यूके में भी, ब्रिटेन में थे ये। और इन्होंने अपनी योग्यता से वहाँ काम किया, ना कि ये दिव्यांगजन हैं तो इनको आंखों से कोई प्रॉब्लम है, इसका कोई कहीं पे भी कोई वर्णन नहीं है। इन्होंने अपनी योग्यता से जो हासिल किया, और अब ये अपने एक उद्यमी जर्नी पे शुरू कर गया है, इन्होंने शुरुआत की है। और ESG, तो ESG का क्या मतलब है? ESG का मतलब है कि भाई E फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरण जैसे, S फॉर सामाजिक जैसे सोशल, और G इज़ फॉर गवर्नेंस, मतलब शासन। तो ये जो सोशल का जो काम है उसमें ये निवेश ढूंढते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं। और इन्होंने यहाँ के पढ़े हुए हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। और इन्होंने, मैं ये जानता हूँ कि ये शायद प्राइवेट सेक्टर जॉब में वन ऑफ द हाईएस्ट रिजन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं। तो मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो आज ये मैं इनसे चाहूँगा कि भाई आप अपने नए अवतार में, राहुल, ये बताइए कि भाई आप जो एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं विच इज़ सस्टेनेबल, हाउ डू यू इंटेंड डूइंग दैट। और आपके जो ये, क्योंकि बैंकर रहे हैं तो इनको सब मालूम है कि भाई पैसे कैसे उठाते हैं, कैसे उनको निवेश करते हैं, कैसे उस पर रिटर्न लेते हैं, और कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं। तभी तो उन्होंने अब ये अपना काम शुरू किया है। तो आप ज़रा बताएं हमारे सभी साथियों को कि ये कैसे हो रहा है। First of all, congratulations to Sarthak for the 9th National Conference for Disability, Dr. Jitendra Agarwal and the entire team of Sarthak. So Atul sir, I don't know about you, but yes, clearly I am a big fan of you, the way you have built the ecosystem. Atul sir ने बड़ा एक interesting explanation दिया entrepreneurship and business का. Let me, on a very lighter note, जब आदमी बेरोजगार होता है ना तो भी वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है. That's the best way. कि भाई आज today is my 23rd day that I'm out of my banking job, and I think if anybody asks me कि यार क्या कर रहे हो, because सैलरी तो बंद हो गई, so I very simply tell them यार सपने देख रहा हूँ. That's the best entrepreneurial journey I've got. But that's on a lighter note. As Atul sir said, 16.5 साल का बैंकिंग करियर,
to economics degree from St. Stephen's College and Delhi School of Economics, one of the fastest growing PWD within the corporate ladder. मैंने इंडिया में काम किया, यूके में काम किया, डिफरेंट सेगमेंट्स में काम किया, इन प्रायोरिटी सेक्टर, delivered some marquee projects in India. But when and I have global aspiration, मतलब मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था, मन में बड़ा क्लियर था कि ग्लोबल नक्शे पे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है. नाउ नेचुरली व्हाट डू वी डू? कंफर्ट जोन है, एक नौकरी कर रहे हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी के लिए बात करी, 4 लोगों से बात करी, एंड टू माई सरप्राइज जो सवाल 16.5 साल पहले पूछा गया था वही सवाल फिर से आ गया. अरे आपको तो विजन की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है. एंड आई एम लाइक वाओ, मतलब 16.5 साल पहले जो जिसने सवाल पूछा था समझ आता था, कुछ काम नहीं किया था, 16.5 साल में 6 नए बिजनेस खड़े कर दिए, इतना रेवेन्यू खड़ा कर दिया. इन माई लास्ट रोल from 0 to 9% market share in 3 years. And it was not because I was Divyang, but I was delivering to the P&L of the bank. But इससे एक बड़ी clear reflection आई that there needs to be, something needs to be done. मैंने बहुत अच्छी बातें अभी मैं पहले panels की सुन रहा था, and congratulations to a lot of corporates who are working there. But एक सवाल जो मैंने कई बार इस मंच से पूछा है, मैं आज भी पूछता हूँ, and I want everybody to reflect. Dr. Agarwal, Sarthak, several other NGOs have done a phenomenal job to bring sensitization around Divyang. कि दिव्यांग एक relevant mass है, इसमें काम करना ज़रूरी है, और corporate sector को भी समझ आने लगा, as we heard from Reliance, Big Basket, others. Productivity of a Divyang is much higher. People are sticky in their jobs, people are around. But what next? The question is, सीनियर लीडरशिप पे कितने लोग हैं? आज भी नहीं है. एक तरफ जहाँ गर्व की बात थी मेरे लिए कि आई रोज अप टू द कॉर्पोरेट रैंक्स, इट वाज अ प्रॉब्लम, मेरे अलावा और कोई क्यों नहीं था. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गिवन मैंने 16.5 साल बैंकिंग में काम किया, आई रियलाइज ग्लोबल कैपिटल विच इज़ एंडोमेंट्स, पेंशन एंड सॉवरेंस, सबको चाहिए ESG. ESG इज़ एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस. सबको डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात करनी है. सब कहते हैं हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे. कई कंपनी से जब मैं पूछता हूँ कि आपके लिए ESG का क्या मतलब है, वो कहते हैं हमारे पास ये पॉलिसी है. मेरा अगला सवाल होता है, आपने कभी पढ़ी है ये पॉलिसी? आपको पता है चीफ लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या होता है? नहीं, बट हमारे पास पॉलिसी है. लाइक वेरी गुड. हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ डू यू हैव हु आर PWDs? एंड आई एम सरप्राइज पीपल रिमेन स्टन. सो मेरा एक बड़ा दृढ़ विश्वास है, ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल, जिस तरीके से आज हम क्लाइमेट को लेकर सेंसिटाइज हुए हैं, DE&I और सोशल को लेके द वर्ल्ड हैज़ टू गेट सेंसिटाइज्ड. चैम्पियंस विल बी दोज हु विल स्टैंड आउटसाइड द कर्व. सो एक छोटा सा मिशन, एक छोटे से विजन के साथ हम निकले हैं, जहाँ पे वेयर वी वांट टू आइडेंटिफाई चैम्पियंस इन द ESG स्पेस. वी वांट टू अट्रैक्ट ग्लोबल पूल ऑफ कैपिटल. ऑफ कोर्स एज आई सेड, आज सिर्फ 23 दिन हुए हैं मेरे को लोगों से बात करते समझते, बहुत सीखना है. मैंने अपनी माई वाइफ हु इज़ माई बिगेस्ट पिलर ऑफ सपोर्ट, मैं उसको एक निकला था कि 12 महीने का रनवे है. ये सोच लो 12 महीने के MBA पे निकला हूँ, 12 महीने में ख़त्म कर लूँ, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, इट ऑल डिपेंड्स. बट कैन आई टैप इन टू पूल्स ऑफ कैपिटल एज वी हर्ड from our honorable guest from Niti Aayog? We want to invest into assistive technology. We want to identify champions in the inclusive tech. उन champions को ढूंढेंगे, उन champions में invest करेंगे, who will have business case, and eventually with these we will create champions and the world will automatically follow. So again, idea is, can we invest into more entrepreneurs who will change the life of every DE&I aspirant, PWD community, and we leave a special mark. Charity is good, but sustainability comes when you create capital, and I think that's where I am from. Thank you. Sorry, long answer, but it's a subject which is now very, very close to my heart. And one important thing, I must announce from here, whatever we do, and to make Sarthak equally sustainable and self-reliant, हम जो काम करेंगे उसका एक fixed percentage will be committed towards Sarthak, so that as an NGO we also become more self-reliant. Potentially at one point we don't have to look for donors, and we are building the community here. Thank you. कितनी बढ़िया बात की इन्होंने कि अभी बिजनेस वैसे ये देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपना
सेटअप कर रहे हैं, इन्होंने पहले से ही कमिटमेंट कर दिया है, तो वो कमिटमेंट जो है ना, एक तरह से इनको एक दुआएं मिलेंगी इनके बिज़नेस के लिए। और बहुत बड़ी बात की कि 5% इन्होंने शुरू से ही आउटलाइन कर दिया है, ताकि हम इसको और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच राहुल। अच्छा, मैं नेक्स्ट आता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। जितेंद्र सिंह यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री 4.0, IT इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने PhD किया है मैनेजमेंट में 25 साल पहले, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, एकेडमिया, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग, पॉलिसी एडवोकेसी, बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं तो इतना सारा पढ़ूंगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और उसी पे मेरा इनका सवाल है। ये फर्मली बिलीव करते हैं कि डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। ये मुझे बहुत क्यूरियस टू नो, इसको बढ़ाएं आप कैसे, इसको आप बता सकेंगे तो आप हमें थोड़ा केस स्टडीज और इंस्टेंसेस बताइए, ताकि आप ये बिलीव कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। थैंक यू वेरी मच अतुल जी। इनफैक्ट सबसे पहले सार्थक को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो इनफैक्ट सार्थक के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूं, और हर साल जब मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूं तो मुझे एक स्केल नेक्स्ट लेवल पे लगता है हर बार सार्थक का। तो सार्थक अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप है, और स्टार्टअप से इट हैज़ बिकम अ लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विंग PWD. So congratulations to Dr. Jitendra Agarwal and the entire Sarthak team and entire fraternity who is directly or indirectly associated with Sarthak and similarly related NGOs. अब अतुल जी, आपने बात की डाइवर्सिटी ब्रीड्स इनोवेशन। इनफैक्ट ये मेरा मंत्र है, बिकॉज मुझे जैसे काम करते एकेडमिया में काम किया, फिर मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस में काम कर रहा हूँ जहाँ की हम इंडस्ट्री डिसीजन मेकर से मिलते हैं, और ये देखने में आया कि जिस बोर्ड में, मैं ऊपर से फिर नीचे की ओर जाता हूँ, कि जिस बोर्ड में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें उतने ही ग्रोथ है। मीन्स आई हैव सीन दैट डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। अब जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अब हमारा बहुत जैसे इंपॉर्टेंट रहता है। इनफैक्ट आपने जैसे बोला, राहुल जी ने बोला और आपने बताई ESG के ऊपर। इनफैक्ट हर बोर्ड रूम डिस्कशन में हम देखते हैं कि ESG के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो ESG में देखते हैं कि अगर हम तीनों को अलग अलग कंपोनेंट्स को लें, तो ESG में मेरा अपना मानना है कि एनवायरमेंटल का जो कंपोनेंट है वो आई थिंक वो 70% का जो खाका है, जो उनका जो रेशियो है उसको वो ले रहा है, और जो गवर्नेंस का है वो अनदर 20% हो रहा है, बिकॉज ऑल कॉर्पोरेट एजेंसी, सबको ऑर्गेनाइजेशंस को कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स एज पर द कंप्लाइंसेस वो पूरे करने ही हैं बाय ऑल मीन्स, वॉट एवर काम में। तो गवर्नेंस पे भी पूरा जोर है इन टर्म्स ऑफ डूइंग पेपर वर्क, डूइंग ऑल मैंडेट्स एंड कंप्लाइंसेस ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स। जब हम सोशल की बात करते हैं तो सोशल में देखा गया कि विद इन सोशल जो ज़्यादा फोकस हो रहा है दैट इज़ ओनली ऑन मोर ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। It is very seldom that there is a capacity building particularly for mainstreaming the marginalized. अब since मैं एक स्टूडेंट हूँ, BRSR का बहुत ध्यान से मैं देखता हूँ। इनफैक्ट आई ऑल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू बिकम मास्टर ट्रेनर इन BSRSR बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट अंडर सेबी। तो मुझे मौका मिलता है ये सारी मैं जो इनकी BRSR की जो रिपोर्टिंग होती है, सिंस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिपोर्ट देयर रिपोर्ट ऑन द पब्लिक डोमेन, तो उसमें मैं हमेशा ये ढूंढता हूँ जो सोशल वाले में प्रिंसिपल 5 में जो 9 प्रिंसिपल्स जो डिफाइन करते हैं कि उसमें इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो इसमें प्रिंसिपल का ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का आता है, उसमें पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी पे कितना जोर दिया गया है। तो ये मैं इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आई मे बी हैविंग लिमिटेड नॉलेज, बट जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं हार्डली कम अक्रॉस any of the reports. So I don't think more than 10% corporate are actually seeing or they are actually having the footprints of PWD within the human capital system. तो उसके बाद जब मैंने ये पाया कि इस टाइप का हो रहा है, तो मैंने फिर sort of हमने सोचा एज ए चेम्बर, वी हैड इंटरनल डिस्कशन, हमारी अलग से टीम है, तो हमने बोला कि जब भी हम डिसीजन मेकर्स के साथ बात करेंगे, कॉर्पोरेट कैपिटल के साथ बात करेंगे, एक हम हमेशा उसमें इवेंजलाइज करेंगे, देयर हैज़ टू बी 1 person इन बोर्ड फ्रॉम द PWD सेक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अगर हमने देखा कि अगर वुमेन बोर्ड में होती हैं डायरेक्टर एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मे बी एज अ डायरेक्टर, वी हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी दैट हैपन्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ becoming sensitive, becoming more sort of compassionate towards the organization, and that's how the organization grows.
So similarly on the same line, agar we have the inclusion of PWD within the board at the board seat, I am sure the organization will go for a sea change. तो हमारा बहुत ये हम दायित्व बनाया हुआ हमने कि जब भी हम कॉर्पोरेट कैप्टन से मिलते हैं उसमें हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर जोर डालें। दूसरा पॉइंट आपने एंटरप्रेन्योरशिप का बताया और जैसे राहुल जी ने अपनी जो स्टोरी बताई, इनफैक्ट अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी, और एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन पीरियड्स फॉर स्टार्टअप कम्युनिटी, क्योंकि जो स्टार्टअप स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं अदरवाइज, और जो प्राइवेट सेक्टर का जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उसका जितना उनका समावेश जो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हो रहा है वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। So within startup, what we have seen, in fact, as a PhD chamber, we have got the opportunity to become the Startup 20 Program Directorate under G20. जैसे हमारा G20 प्रेसिडेंसी शुरू हो गई है 1 दिसंबर से, within G20 there is a Startup 20 domain also. तो हमें ये दायित्व मिला है कि पूरी इंडिया में जब हम जाएंगे, हमें 200 के करीब डिफरेंट प्रोग्राम्स करने हैं स्टार्टअप के ऊपर, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमने सोचा है कि वी हैव टू have some sort of a skin in the game wherein we are able to mainstream the marginalized. और जब मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, हमारा हमेशा ये कॉरिडोर पर रहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप के स्टार्टअप्स के लिए क्राउड सोर्सिंग के थ्रू और इन्वेस्टमेंट के थ्रू, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स हु आर इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्पेस, उनको हम आगे लेके आएँ, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू द गेम चेंजर। इनफैक्ट अगर आप देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट एनेबलर फॉर एनी person, be it at the personal level, at the professional level or at the organization level. So हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टअप 20 के जरिए हम असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ और उस टाइप के स्टार्टअप्स वो वर्किंग इन PWD डोमेन उनको भी आगे लेके आएँ, सो दैट देयर इज़ अ मोर इवेंजलाइजेशन, देयर इज़ मोर ट्रैक्शन दैट वी कैन क्रिएट। ये मेरे सब पॉइंट्स अपनी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जस्ट वन फॉलो अप क्वेश्चन हियर, आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि स्टार्टअप 20 अंडर G20 एंड G20 आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, गूगल भी कीजिएगा। बहुत मान की बात है इंडिया के लिए कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जैसे वर्ल्ड का जैसे अटेंशन है वो हमारे ऊपर है। तो ये स्टार्टअप 20 के लिए अगर कोई आपसे ज़्यादा पूछना चाहे या अप्लाई करना चाहे तो क्या कर सकता है? इसके लिए आप इनफैक्ट अभी जैसे हमारा वेबसाइट पर सारी डिटेल्स अब हम डाल रहे हैं, बिकॉज अभी इसी महीने से, इसी हफ्ते से सारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। विद इन स्टार्टअप 20 3 डोमेन बनी है, 3 ट्रैक्स बने हैं। एक है फाइनेंस ट्रैक जिसमें कि AIVCs के लिए है और क्राउड सोर्सिंग के लिए है। दूसरा है ट्रैक है सस्टेनेबिलिटी एंड SDGs विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक, एंड थर्ड इज़ द पार्टनरशिप्स एंड इंक्लूजन। सो इन तीनों ट्रैक में हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जाके हम अलग अलग रोड शोज़ कर रहे हैं और शुरू हो गया, हमारा कैलेंडर बन गया है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपका स्टार्टअप कोई भी इस टाइप का रुझाव है आपके, पर्टिकुलरली इन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ और एनी मॉडल और एनी प्रोडक्ट दैट इज़ बेसिकली डायरेक्टेड फॉर PWDs, काइंडली राइट ए मेल टू अस। मैं सार्थक से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरा मेल ID, आप अगर डेलीगेट्स के आपके पास रजिस्ट्रेशन लिंक है या कोई इस टाइप का लिंक है, आप प्लीज़ मेरा उसमें ईमेल डाल दीजिए। और जहाँ भी हम कोशिश करेंगे, जिस स्टेट्स में भी अगर उस टाइप के स्टार्टअप्स आगे आना चाहें, विल ट्राई टू ब्रिंग देम इन द पिक्चर। थैंक यू वेरी मच। मेरी गुजारिश है, जो भी यूट्यूब और फेसबुक पे इस समय सार्थक के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें जतिन सिंह जी की ईमेल ID आप पब्लिश कर दें ताकि लोगों को सामने मालूम पड़ सके। थैंक यू वेरी मच जतिन जी। आई वुड नाउ लाइक टू कम टू डॉक्टर नीरू कुमार। नीरू जी, we have talked about ESG. The other very important term is diversity and inclusion, जो जतिन जी ने बात की। तो नीरू जी के बारे में बता दूं कि ये इनको पद्मश्री मिला in 2021 फॉर टायरलेस वर्क इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जिसको DNI भी बोलते हैं और अब शायद DEI भी बोलते हैं। ये नेशनल आइकॉन है, बोर्ड मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव कोच हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं, और इन्होंने एक कंपनी चलाती हैं आस्क इनसाइट्स, वुमेन ओन्ड कंपनी है। उसमें DNI के बारे में ये कंसल्टिंग करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनी लाइक यूनिलीवर, गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब में इन्होंने भागीदारी दी है, अपने एक्सपर्टीज शेयर की है। तो इनको खुद देखिए एक तरह की डिसेबिलिटी है, लेकिन उसको छोड़ के इन्होंने इतना बड़ा कारोबार इन्होंने शुरू किया है और विमेन ओनली के। तो मैं ये चाहता था कि नीरू जी आप ये बताएं कि जब कोई एक एजेंडा सेटअप करना पड़ता है फॉर कॉर्पोरेट,
ऑन DNI और उनके लिए क्या पाथ होगा आगे, कैसे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, कैसे, क्योंकि हर जगह DNI का चैप्टर शुरू हो रहा है लेकिन मालूम नहीं लोगों को करना क्या होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सार्थक के साथ भी मतलब हम लोग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं कॉर्पोरेट के साथ, और मैंने भी 1-2 जगह मैंने इस पर टॉक भी किया है। और ये लोग बैठे हैं, इनकी वेबसाइट्स पे या इनके ईमेल पे आप लिख सकते हैं। आपका मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, अप टू डेट, रिलायबल, इसलिए आप इस सब जो व्यवस्था बनी है उसका आप उपयोग करें। और ऑल द बेस्ट। एंड अब नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का कोई पैनल होगा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे और भी एंटरप्रेन्योर्स आके बैठें और कहें कि उनको कैसे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, तभी मज़ा आएगा कि भाई आज हम जो 1 घंटे के लिए यहाँ बैठ के बात की है उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ, और मैं उसको जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Atul sir. Thank you all the panelists for this wonderful session. I would request Raj Kapoor sir, our advisory board member, to please come on the dais. अभी हमारे साथ एक हमारे कैंडिडेट हैं बम कुमार, वो मुंगेर बिहार से आए हैं और उनको हम एक असिस्टिव डिवाइस ये पैनल में देना चाहते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट राज कपूर सर टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज. He is traveling all the way from Munger, Bihar to attend this conference. We should appreciate him and we should clap for him. Thank you, Raj Kapoor sir. Sir, I would also request you to please extend our token of appreciation and heartfelt thanks to our panelists and Atul sir, our moderator of the session. Thank you, Atul sir. Thank you, Raj Kapoor sir. Thank you to all the panelists.